So coming to a point as to the next new chapter, let us just imagine that we've become doctors. ठीक है, we've given a NEET examination, we've scored 700 on 720. ठीक है, and imagine करें सौरजा वो ऐसे ही खुश हो गया. ठीक है, we've gone into KEM hospital college and we've done a master, everything done. ठीक है, MBBS हो गया, ये वो सब हो गया. अब तुम्हारे पास एक पेशेंट आ रहा है जो कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है. ठीक है, उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, एंड ट्राई एंड चेक व्हाट एग्जैक्टली इट कुड बी. इस पेशेंट को ना स्टमक पेन बहुत हो रहा है. ठीक है, एंड उसको लूज मोशंस हो चुके और बॉडी काफी वीक हो गया है, मीनिंग कुछ खा नहीं पा रहा है लूज मोशन से इस वजह से. सो व्हाट कुड बी द abnormality? Diarrhea or maybe food poisoning, right? How will you treat that patient? क्या देंगे? Antacid will give them. ठीक है, but that's generally given when a person is suffering from acidity rather than diarrhea, right? If a person is suffering, you are assuming, you are making a particular prediction that the person is suffering from diarrhea or maybe let's say food poisoning. How will you treat that patient? तू वो वाली डॉक्टर बनेगी जो पैसे हटने के लिए उसका ब्लड टेस्ट करवाएगी ऐसे वाली चीज के. It's a clear case of diarrhea or food poisoning. You don't need any blood test for this. You don't need all those things if you are a good doctor. और तो वो डॉक्टर बनेगा तो छोटी सी बात पे उसको हॉस्पिटलाइज करवा देगा. That's only if that becomes only at the case when the person has suffered from diarrhea for a prolonged period of time, let's say for a week or so. Then you ask that patient to get into hospital and go for saline and intake and all of that. Otherwise you don't require. तुझे नॉर्मल 2 दिन का जुला वो उसमें क्या हॉस्पिटल में जाके सलाइन का बाटला चढ़ाते बैठेगा? नहीं, गो बियॉन्ड. क्या इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम हो जाए उसके लिए हम उसको कुछ दवाई दे देंगे. Ideally we give some kind of medicines. That's the best thing. ठीक है, let's say if we talk that the person is suffering from diarrhea or food poisoning, we know that it's a bacterial infection. Yes or no? This basic we are aware that it's a bacterial infection. If I kill those bacteria, won't it be easier for me to treat that patient? ना उसको सलाइन देने का जरूरत पड़ेगा मेरे को, उसको मैं बोल सकता हूँ ग्लूकॉन डी पिया कर करके, एंड वी आर सॉर्टेड ओवर देयर. ठीक है, सलाइन का बाटला महंगा आता है, ग्लूकॉन डी सस्ता आता है. ठीक है, तो हम डॉक्टर के साथ साथ इंसानियत भी दिखाना है उनको. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हमने लाखों रुपए डाल के डॉक्टर बने हैं, बट वो लाखों रुपए को रिकवर करने के लिए अपने पास पूरा जिंदगी पड़ा है. इसके लिए उसका जिंदगी छीनने का जरूरत नहीं है अपने को. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आस्क दैट पेशेंट टू टेक ग्लूकॉन डी और इवन शुगर वाटर वर्क्स एट होम. ठीक है, कट टू या शुगर वाटर बोल दो या फिर कुछ और बोल दो उसको. कट टू, you can give them certain medications with the help of which that particular bacteria get killed. If I give you a simple thing, we can use some kind of antibiotics with the help of which bacteria would get killed. However, antibiotics is the last option that a doctor prescribes. A good doctor would prescribe antibiotics as the last option. Okay, but a dumb doctor will always give first antibiotics, stating that कि वो मर गया मतलब मेरा नाम तो हो गया. ठीक है, so it's up to us how we become a doctor. Now, when you're giving antibiotics or when you're giving some medications to that particular patient, we are assuming that those bacterial cells would get killed. However, we are also assuming that human cells should not get killed. Meaning, we need to very carefully understand that the chemical that you're asking that patient to take in, how those chemicals are interacting with your body and how those chemicals are interacting with those bacteria's body. This is very important for us to understand. Yes or no? And for that specific reason, firstly, we need to know what all chemicals exist in our cells. है ना? तो हमारे सेल्स कैसे बने हैं वो तो हमने देख चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर में वो देख लिया कि सेल्स कैसे बने हैं. दूसरे चैप्टर में हमने देख लिया कि सेल्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं. इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि उन सेल्स के अंदर कौन से केमिकल्स है, वो केमिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं बॉडी में, उसकी क्या बेसिक फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होंगे. These are the things that we are understanding in this particular chapter. Now, since
we are discussing about the chemicals that are found in human body or animal body or living organisms cell. You classify this particular chemicals to be as biomolecule. So we'll be discussing about biomolecules today. So bio meaning life, molecule is molecule. So every molecules that you find in any living cell will be classified to be as biomolecule. Are we clear up till here? Any doubts? Now if I want to identify, ठीक है, कि मृगजा के बॉडी में कौन से केमिकल्स है, ठीक है, मुझे देखना है कि मृगजा के बॉडी में कौन से केमिकल्स है, उसके सेल्स में कौन से केमिकल्स है, तो मैं कैसे देखूंगा? द इनिशियल सिंपलेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज उसके बॉडी में से कोई भी पार्ट में से मैं एक पर्टिकुलर टिश्यू को तोड़ के ले लूंगा, फिर इस टिश्यू को छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगा and I would add a particular chemical which is called as trichloroacetic acid. ठीक है, we would add trichloroacetic acid, also called as TCA. ठीक है, we would add trichloroacetic acid. Are we clear up till here? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइक्लोरो है यानी Cl3 करेक्ट, यस और नो? H नहीं आएगा बिकॉज उसके 3 वैलेंसीज क्लोराइड के साथ हो गए, एक वैलेंसी COOH के साथ. तो दिस बिकम्स योर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. कैन आई गो अहेड? इसके साथ मैंने उसको स्मैश कर दिया पूरी तरह से, और स्मैश करने के बाद बन गया समथिंग कॉल्ड एज स्लरी. वी नो व्हाट इज स्लरी? चटनी जैसा, ठीक है, सूप वगैरह रहता है कुछ वैसा. तो हमने पूरा इसका स्लरी बना दिया बेटा. अब स्लरी बनाने के बाद मैंने उसको फिल्टर किया बिकॉज मुझे जानना है उसके बॉडी में कौन से केमिकल्स है. सो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट इज आई गो अहेड फॉर filtration. So we went ahead for filtration. No. नहीं, तो इसलिए थोड़ी बाहर गया था. एंड रिकॉर्डिंग इज ऑन, नॉट राइट नाउ. व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन, यहाँ पे हमने क्या किया? जो भी स्लरी बन के मिला था उस स्लरी को हमने ऊपर डाल दिया. अब स्लरी में ऑब्वियसली कुछ चीज जो है वो ऊपर रह जाएगी ना बेटा, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और लिक्विड सब नीचे आ जाएगा. दिस केमिकल इज एसिटिक एसिड विच इज विनेगर. ऑब्वियसली इट इज लिक्विड, तो लिक्विड नीचे आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आ गया ये लिक्विड पार्ट अपना. अभी जो लिक्विड पार्ट नीचे मिल रहा है इससे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. क्या कहेंगे? ऊपर जो बच गया है अपने पास, दिस पार्ट सॉलिड पार्ट विल बी कॉल्ड एज रिटेंटेट. क्या कहेंगे? ना ऑल केमिकल्स दैट आर फाउंड इन फिल्ट्रेट, ऑल केमिकल्स. अब जब हमने वो टिश्यू को ग्राइंड किया तो ऑब्वियसली कुछ केमिकल्स जो रहेंगे वो एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हुए रहेंगे और कुछ नहीं हुए रहेंगे. सो कैन आई से ऑल केमिकल्स दैट आर फाउंड इन फिल्ट्रेट are the ones that are dissolved in acetic acid? So this part, this fraction of filter will be called as acid soluble part, which is nothing but all chemicals that are solubilized in acid will be found in filtrate. Are we clear up till here? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सारे? Acid insoluble बेटा. Non-acid soluble is a wrong statement. You will have acid insoluble chemicals. Are we clear? Everyone? अब क्वेश्चन इज कि कौन से केमिकल्स एसिड सोल्यूबल होंगे और कौन से इनसोल्यूबल. सो जितने भी केमिकल्स हमारे आसपास दिखते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. केमिकल्स व्हिच हैव देयर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 Daltons will be found in acid insoluble fraction.
Since their molecular weight will always be more than 1000, which is very heavy, you classify them to be as macromolecules. तो एसिड सोल्यूबल में क्या रहेंगे? ऐसे जिनका माइक्रो molecular weight will be less than 1000 Dalton, so they will be called as micromolecules. We would call them to be as micromolecules. Are we clear up till here? Everyone, can I go ahead? Okay. अब ये तो हमने रट लिया सर कि 1000 मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा मैक्रो, 1000 मॉलिक्यूलर वेट से कम जो है वो माइक्रो. हमें कैसे पता चलेगा कौन से मैक्रो कौन से माइक्रो? हम थोड़ी उसको मापने जाने वाले हैं. ये तो हमें रटना ही पड़ेगा ना सर. नहीं, हमें रटने का जरूरत नहीं है. We'll take certain examples of that. Now, what are examples? When we talk about macromolecules, it includes protein, it includes nucleic acids, which is DNA, RNA, and it will include polysaccharide. We know what is polysaccharide, yes or no? Complex sugar. These will all be macromolecules having their molecular weight more than 1000. Alright, when I talk about micromolecules, इनको छोड़ के बाकी सारे माइक्रो हो गए. जैसे ये बनता है अमीनो एसिड से, सो अमीनो एसिड्स बिकम माइक्रोमोलिक्यूल. ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से, क्या होते हैं हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ये बनेगा पॉलीसैकेराइड ना, तो यू विल हैव इट्स स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, या फिर यू आल्सो कॉल इट एज डाइसैकेराइड. ठीक है. Whereas along with this you can also include certain chemicals like vitamins, you can include certain ions, salt, minerals, etc. Now we know that iron, salts and minerals are all inorganic chemicals. I'm assuming that we are aware about the fact that chemicals are of two types. You can have organic chemicals and inorganic chemicals. Yes or no? Devika, what are organic and inorganic, beta? Rajnandri, what are organic and inorganic? कार्बन का जो कार्बन वो में जो ऑर्गेनिक में कार्बन सोल्यूबल कार्बन जो आते हैं और इनऑर्गेनिक. So carbon dioxide will be organic. Yes, Soham. What will be the difference between organic and inorganic? Quickly. Organic, like living organisms. Organic are found in living organisms. So you have water found in your body maximally. Can I say water is organic? You have sodium ions and potassium ions also found inside your body. Can I say that they are organic? Anyone would like to answer? Yes, Sujal? Absolutely. All hydrocarbon compounds will be classified to be as organic, whereas all inorganic, so I'm said, all inorganic compounds will be those which do not have hydrocarbon present in them. जिस केमिकल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इन्वॉल्व है, that means it is organic. So इसमें अगर तुम देखो आयरन, सॉल्ट और मिनरल्स, ये तीन छोड़ के बाकी सब में you have hydrocarbon present. So all of them will be organic. यानी कि अगर मुझे मृगजा के बॉडी में ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से वो जानना है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड दैट आई कैन ऑप्ट, बिकॉज काफी कम इनऑर्गेनिक केमिकल्स मुझको एक्सट्रैक्ट करके मिल रहा है, ज्यादातर मुझे क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिक. आर वी क्लियर एवरीवन? अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन से फ्रैक्शन में हमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिलेगा, एसिड सोल्यूबल या एसिड इनसोल्यूबल, आंसर क्या लिखेंगे? एसिड सोल्यूबल में वी फाइंड inorganic compounds. And in which fraction do we find organic? Acid soluble or insoluble? Both. Organic दोनों में मिले ना भाई, ऑर्गेनिक दोनों में मिलेगा, इनऑर्गेनिक सिर्फ एसिड सोल्यूबल में. समझ पा रहे? चले आगे. ये हो गया अगर मुझे जानना है ऑर्गेनिक कौन से. व्हाट इफ आई से कि नहीं मुझे मृगजा को बॉडी में ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक फाइंड करना है, so in that case what? So in that case I change my procedure, meaning instead of going ahead with this fact
मैं टिश्यू को ड्राई कर दूंगा, मीनिंग सारा मॉइस्चर निकाल दिया उसमें से। मॉइस्चर निकालने के बाद मैंने उसको जला दिया, ड्राई हो गया ना, सब मैंने उसको जलाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? अब जब मैं उसको जला देता हूं तब क्या होता है? हमने काफी बारी देखा रहेगा, जब पेपर जला देते तो काला काला हो जाता है, जब हम लकड़ा जलाते काला काला हो जाता है, जब दिया जलाते काला काला हो जाता है। दैट ब्लैक ब्लैक वी नो इट इज नथिंग बट कार्बन. So all carbon compounds gets burned and becomes in the and goes out in the form of vapor. So what is left is inorganic chemicals. So we can use this particular ash as a sample for inorganic chemical testing. Are we clear? Yes or no? Everyone? हो गया? 5 मिनट रुको, मैं बुलाता हूँ. Are we clear up till here? Yes. Everyone? Yes. Any doubts? नक्की? नक्की? चलो. But इस चैप्टर में मुझे ये देखना ही नहीं है. Inorganic part I'm not interested. Since I'm talking about biomolecules or living organism में organic content ज्यादा रहता है, so we are more interested in this part only. If you notice, ध्यान से, इसमें मैंने सारे compounds लिखे except for fats. Did we mention anywhere? Lipids देखे ही नहीं हमने. Because in this, lipids are the only exception case. इसमें lipids are the only exception case which are found in retentate, that is in the acid insoluble fraction. However, their molecular weight is less than 1000 Dalton. लिपिड्स इकलौते ऐसे केमिकल्स है, सोहम सीधा बैठ, इकलौते ऐसे केमिकल्स है जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 1000 डाल्टन से कम होता है बेटा, लेकिन वो रिटेंटेट में दिखाई देगा अपने को, ना कि फिल्ट्रेट में. ऐसा क्यों सर? बिकॉज इट इज एसिड इनसोल्यूबल, इट इज नॉट डिसॉल्व, इट इज insoluble in trichloroacetic acid. Just because it is insoluble in trichloroacetic acid, it is never found in the filtrate, but it is found in the retentate. Are we clear up till here? Everyone? Any doubts? All clear? चलिए आगे. ये सारे जो केमिकल्स हमको मिले वो हमारे बॉडी में बन रहे हैं ना? Yes or no? तो हमारे बॉडी में ये बनते कैसे हैं? That's the query. ठीक है, इतना लिख लो, फिर वो बताता हूं मैं. When we go ahead and talk about the organic chemicals further, ये organic chemicals क्या होते हैं, कैसे बनते कैसे हैं हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, to what you call it as metabolism. Are we aware about this process? Yes. What is metabolism? What is metabolism? All chemical reactions that takes place in our cells can together be called as metabolism, which basically can be divided into two types of reactions, which is catabolic reactions as well as, ये हम foundation में कर चुके. Catabolic reactions meaning where the complex molecules gets broken down to simpler. Anabolic is where simpler molecules will combine together to synthesize and form complex compounds. Whenever you have these kind of reactions that takes place inside your cells, it is generally where you have a reactant that gets converted to product. Yes or no? It is reactant that gets converted to product. ये basics हमें पता है already, है ना? जब reactant product में convert होता है, बीच में काफी बार हम इस्तेमाल करते हैं एक केमिकल का जिसका हम कहते हैं catalyst. Does everyone know what is catalyst? Yes. Everyone? Yes. Anyone who doesn't know what is catalyst? तो हाथ ऊपर कर. ओके. कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाय बनाना चाहता हूं, ठीक है, और मैं फायर का इस्तेमाल नहीं करता, मैंने एक पतीले के अंदर सारी चीजें डाल दी जो चाय के लिए चाहिए, एंड आई कीप ऑन स्टरिंग इट, ठीक है, एंड आई कीप इट असाइड. ऑफ कोर्स वो इंटरनली रिएक्शन करके चाय बना के देगा, बट दैट विल बी कोल्ड टी, नॉट द एक्चुअल टी दैट वी ड्रिंक. यस और नो?
वहीं पे अगर, और ऑब्वियसली उसको जब मैं चर्न करूं तो इट विल टेक टाइम, वहीं पे अगर मैं उसको स्टव पे रख दूं तो फायर की वजह से वो फास्टली गर्म हो जाएगा और मिक्सिंग भी फास्ट हो जाएगा. यस और नो? सो हियर दैट फायर एक्ट्स एज कैटलिस्ट व्हिच इज स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शंस. डू वी अंडरस्टैंड? काफी बारी होता है ना ऐसा कि अगर हमको पापा के पास से कोई बात मनवाना है तो मम्मी के थ्रू जाते हैं. मम्मी का कुछ लेना देना ही नहीं उस बात से, बट फिर भी वो तुम्हारा हेल्प करती है ना. सो मम्मी बिकम्स व्हाट? सेम चीज. सो हमारे बॉडी में भी जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब कुछ ऐसा ही होता है, बस खाली नाम चेंज हो जाते हैं इनके, because it is metabolic reactions. So reactant over here is now called as substrate. We call it as product is called as metabolite. काय म्हणतात? And the catalyst which is involved for carrying out this reaction becomes your enzymes. Normally body के बाहर जो chemical reactions होते हैं possibly वो बिना enzymes के भी हो जाएंगे, बट जब हम बात करते हैं ऐसे रिएक्शंस का जो बॉडी के अंदर होता है, दिमाग में गांठ बांध के रखो, नो रिएक्शन इन योर बॉडी कैन टेक प्लेस विदाउट एंजाइम्स. नो रिएक्शंस इन योर बॉडी कैन टेक प्लेस विदाउट एंजाइम्स, मीनिंग every metabolic reactions that is possibly occurring inside your body will be taken place only and only with the help of enzymes. Are we clear? ऐसा क्यों सर? वो चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों. अभी के लिए खाली इतना याद रखो कि जितने भी एनाबॉलिक जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर होते हैं बिना एंजाइम्स के वो कभी भी होंगे ही नहीं. Are we clear बेटा? चले आगे हम. ठीक है, गोइंग है. जब हम ये मेटाबोलाइट कहते हैं, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काफी सारे अलग अलग टाइप के मेटाबोलाइट्स बनते हैं ना. इन सारे मेटाबोलाइट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा. We divide these metabolites into two parts. One is called as primary metabolite, and other one is called as secondary metabolite. Now, what exactly are primary metabolites? ये क्या होते हैं primary metabolites? हर वो केमिकल जो हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा, उन केमिकल्स को हम कह देंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, अगर इसको और सिंपलर शब्दों में समझना है तो हर वो केमिकल जो हमारे सेल्स बनाते हैं, एवरी केमिकल दैट फॉर्म्स सेल इन आवर बॉडी विल बी क्लासिफाइड और विल बी पार्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. We have done cell the unit of life, so you all know within cell which chemicals are involved in formation of the cell. ठीक है, which are those chemicals? Sugar, which is nothing but carbohydrates, proteins, lipids, plus nucleic acids, which is nothing but correct DNA and RNA. ये चार चीजें हो गई ना तो हमारा सेल तो बन गया भाई, बाकी चीजों की हमको जरूरत नहीं है. ये चार केमिकल्स में हमारा सेल बन जाता है. इन चारों केमिकल्स को छोड़ के बाकी जितने भी केमिकल्स है दुनिया में सारे बिकम्स योर. सो secondary metabolites are never produced by animals. They are always produced by plants or bacteria or fungi. Except for plants, bacteria and fungi, no other living organism on this earth has capability of forming secondary metabolites. Are we clear? Yes or no बेटा? Yes. समझ पा रहे? तो ये चार को छोड़ के जितने भी केमिकल्स है वो सारे क्या हो गए? Secondary. Can I get some example? Not from you. Can I get some examples? जोर से बोल. विटामिन इज करेक्ट. विटामिन हमारे बॉडी में नहीं बनते. मिनरल इज इनऑर्गेनिक. वी आर टॉकिंग एंटायरली अबाउट ऑर्गेनिक केमिकल्स.
अपने आसपास देखो, लोगों ने जो कपड़े पहने वो देखो जरा, कलरफुल है। ये कलर कहाँ से आया? हमारे पसीने से। फिर पिगमेंट से आया ना। हु गिव्स अस दीज पिगमेंट्स? प्लांट्स, बैक्टीरिया या फिर फंगस। फिर जिंदगी में बहुत क्या है, कभी खुशी कभी, ये गम कहाँ से आता है? धोखेबाज इंसान से नहीं बाबा, कहाँ से आता है? प्लांट सैप। सो यू हैव गम, कैन वी प्रोड्यूस दिस गम? फिर रेजिन, लैटेक्स, करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? प्लांट प्रोडक्ट्स। अब ये प्लांट प्रोडक्ट्स जो बने हैं, इनमें हमें पता नहीं कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स किस काम के, वेदर इट इज एक्सक्रीटरी या वो खुद किसी प्रोटेक्शन के लिए काम करे, हमको पता ही नहीं वो चीज। ठीक है। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे हमने प्राइमरी के लिए बोला ना कि वो इन कामों में इस्तेमाल किया जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में काफी सारे ऐसे केमिकल्स है जिसका हमको क्लैरिटी ही नहीं है कि वो क्यों बनाया जा रहा है, जिस वजह से वो हमारे बॉडी में तो नहीं बनते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या? लेट्स से सपोज कि अथर्व को ना बहुत भूख लगा अथर्व को, और उसके कोई फ्रेंड्स उसका टिफिन शेयर नहीं किए। अब घर जाना है उसको, लेकिन इतना भूख लगा है कि सह नहीं पा रहा है, घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो वैसा भूख लगा है। अब वो था वेजिटेरियन, तो क्या रास्ते में चलते चलते कोई भी प्लांट की लीफ को तोड़ के खा सकता है वो? क्यों? निखिल तू खा ले। क्या सेल्यूलोज? तो तू एप्पल नहीं खाता है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता? तू रोटी नहीं खाता, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता? सेल्यूलोज इज सेल्यूलोज, कम ज्यादा क्या हुआ? प्लांट ही है ना वो, प्लांट के सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। क्यों नहीं खा सकता? Correct, it could be poisonous. So that is one method where plant is protecting itself from predators like us. That's why we randomly don't pick up any leaf and eat. अगर हमको पता है कि ये मेथी का लीफ है तो ही उसको तोड़ के खाएंगे, अगर हमको पता है ये पालक का लीफ है तो ही तोड़ के खाएंगे, ये तुलसी लीफ है तो ही तोड़ के खाएंगे। रैंडमली कोई भी नहीं तोड़ते अपन। Yes or no? That's because we are aware about the fact that they tend to produce certain kind of toxin. They can produce some kind of toxins. Yes or no? What else can they produce? Cell wall. और क्या वो प्रोड्यूस कर सकता है? कभी हम ऐसा शादियों में गए हैं, शादी बर्थडे पार्टी, पूरे रेडी हो जाने के बाद जब तुम घर से निकलते हो तब उसके पहले मेक श्योर करते हो कि पसीने का वासना है ना? करेक्ट। कहाँ से आता है वो? अरोमैटिक्स। हमारे पसीने से बनता है? नहीं। There's some chemical, right, in that which gives you, which could be rose flavor, jasmine flavor. ठीक है, अलग अलग फ्रेग्रेंस का होता है वो। प्लस हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, लक्स साबुन वाला, कतरीना कैफ, शाहरुख खान ऐसा साबुन से नहा रहे है ना, तो साबुन में से भी स्मेल आता है, शैम्पू में से भी स्मेल आते हैं, जैस्मिन वाला शैम्पू है, हिबिस्कस वाला शैम्पू, तो स्मेल्स आते हैं। कहाँ से आते हैं? You have some, not esters, you have certain essential oil which are present within them that provides this specific fragrances. All right. Apart from that, antibiotics. Yes or no? Antibiotics हम बनाते हैं, plants बनाते हैं, या bacteria या funguses. These antibiotics are classified to be as drugs as well, which are produced. ठीक है, बस अभी चलो एक्सेट्रा, सारे आंसर्स मैं ही दे रहा हूं। So these all becomes part of your secondary metabolite. I hope यहाँ तक सब कुछ clear है? Any doubts? All sort. So in next lecture, that is next week when we meet back again, we would get into the details of all of these metabolites. ठीक है, one by one. We are in this chapter interested only for primary metabolites and nothing else. ठीक है, तो हम सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को डिटेल में देखने वाले हैं और किसी को नहीं। अब जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बात करते हैं, हमारे एनसीईआरटी में एक पेज पे एक पूरा टेबल दिया है जहां पे
हम रीड करेंगे बेटा, अभी और आधा घंटा बाकी है अपने को छूटने के लिए. विल रीड. पहले सुन लो. हमारे एनसीईआरटी में ना देयर इज अ पेज वेयर देयर इज अ पर्टिकुलर टेबल गिवन which gives you a list of list of your secondary metabolites. So make sure that you mark that as very important because that table can be coming up और या फिर आता ही है नीट एग्जामिनेशन में. क्लासेस के टेस्ट में उस टेबल से 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो 15 मार्क्स पकड़ के चलो उस चैप्टर उस टॉपिक में से. आर वी क्लियर अप टिल हियर? अरे बाबा मैं बताऊंगा ना कहाँ है टेबल, क्या है वो, सुन तो लो पहले. यहां तक क्लियर है? एनी डाउट्स? पक्का. सो जब हम इन सारे केमिकल्स का बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी वगैरह में दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर you have all of these chemicals which are present. Maximum chemical which is present inside your body or inside your cell will be water. What percent of water can be seen inside your body? 70 to 90%. ठीक है, पानी सबसे ज्यादा होता है और इसके बाद सबसे ज्यादा अगर हमारे सेल्स के अंदर कुछ होगा दैट विल बी प्रोटीन्स which will somewhere around 10 to 15%. After protein we would have something called as which is somewhere around, no, you have nucleic acids which is 5 to 7%. Then you would have carbohydrates which will be, and then you would have lipids which are, and finally you have ions which is 1%. Are we clear? Yes or no? Yes. Any doubts? चलो लिखे इतना फटाफट. This table also becomes very important for NEET examination. ये information जो भी लिखे वो